Good morning, children. Today we are going to start a new unit, that is India Agriculture. As you know that India is a developing country. Of course, mostly contribution in the production comes from agriculture. And of course, you know that agriculture is one of the basic need of any country. Means food is one of the basic need. But crops are not only grown to fulfill the belly, but they are also grown for the export purpose also. So it's important. We have already studied about soil, weather. Now we are going to continue what kind of crops can be grown, what are the major crops we grow in India, and how they are important in economic development. Okay, let's begin. Since ancient time, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. India is in developing country. Of course, it is one of the primary sector is dominating in the economy. Even today also, main support for the Indian economy is agriculture. Main support, as I told you, primary sector is contributing the most. Agriculture is an important resource of India. Agriculture is one of the important resource, for India. About 60% of labor power is engaged in agriculture, because we have already studied about the features of developing country. India is a developing country. Of course, the most of the population is dependent on agriculture for their earning. So they are also they are dependent on agriculture. Besides supplying food to the people, 60% of people are engaged in agriculture. 60% of people, population is engaged in agriculture. Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also comes from agriculture, because primary sector is the sector which provides raw material. That's why besides fulfilling the need, basic need of food, but it is also a raw material source for many other industries. Agriculture occupies about 22% of the national product. टोटल नेशनल प्रोडक्ट जो है जितना भी बनता है उसका 22% वो एग्रीकल्चर से आता है. ठीक है. टोटल प्रोडक्शन जितना भी टोटल प्रोडक्शन नेशनल प्रोडक्शन होता है, यू कैन से नेशनल प्रोडक्शन. ठीक है. नेशनल प्रोडक्शन जितना होता है इसमें 22% जो प्रोडक्ट्स है दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. Crops and other farm products hold about 18% contribution in export. Export में in export it holds 18%. Export. It holds 18% in export, which earns huge foreign exchange. Of course, जितना export होगा, foreign exchange उतना ही ज़्यादा होगा. The Indian economy is mainly dependent on agriculture. We have already studied about the features of developing country. तो उसमें ये भी है कि agriculture जो है वो dominate करता है in any of the developing country. Primary sector is contributing the most in the economic development in the production. Thus, India is an agrarian country, क्योंकि सबसे ज़्यादा contribution agriculture का है, raw material mostly आता है, mostly export agriculture से होता है. So that we can say that India is an agrarian country. In most of the area in India, 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round-the-year cultivation, irrigation, skilled and hard-working farmers. So some factors are there which enhances the production of agriculture. What are the factors? Like fertility of the soil, plain lands, alluvial soil, favorable different climate, because India has a multiple climate. You know that winters, summers, monsoon, extreme conditions are also there. So irrigation facility, you know that many of the rivers, ponds, lakes are there. So skilled and hard working people, skilled labor, manpower is also available here.
So most of the factors for agriculture are provided here. They are abundantly blessed by the nature. Even then, the progress in the field of agriculture is not sufficient. But still, after having all these positive things, positive factors, still the agriculture sector is not getting sufficient progress. The Indian farmers are generally poor and uneducated. One of the biggest factor is they are poor. The farmers who are basically doing the agriculture, they are poor as well as uneducated. Because they are uneducated, they are not able to take the advantage of different facilities and policies provided by government. क्योंकि वो uneducated है, इसलिए unaware है. Agriculture production in India is much less compared to the world due to reasons like inadequate facility of irrigation, irregular and uncertainty of rain, more population, larger family, smaller farms, no interest in experimentation, less usage of chemical fertilizers, modern machinery and scientific approach for cultivation, educated mass opting away from agriculture, so called lower status for agriculture in the society. So we found out some reasons behind why agriculture sector is backward, why it is lagging behind. Some of the factors are given here. Inadequate facility of irrigation, you know that we have to depend on monsoon अगर डिले होता है तो इरिगेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है हमारे पास. ठीक है. फार फ्लंग एरियाज, अब वी हैव डेजर्ट एरियाज, प्लेटू रीजन्स, तो वहाँ पे इतना मुश्किल होता है एग्रीकल्चर करना. सो इट्स वन ऑफ द फैक्टर. इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, एज आई टोल्ड यू वी आर डिपेंडेंट ऑन मानसून ऑल्सो. हमें मानसून पे भी डिपेंड करना पड़ता है. तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उनको सोक करने के लिए वी हैव टू वेट फॉर मानसून, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा निकल जाता है. कभी कभी एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है, देन क्रॉप्स आर डैमेज. समटाइम्स लैक ऑफ rain water is there, so crops are damaged. So these are the factors which are important. Why, how people are suffering. Agriculture को कितना इफेक्ट पड़ता है with the supply of water. Okay. More population बढ़ती जा रही है और basic needs ही fulfill नहीं हो पा रही है. You know, when the population will increase, the food products will be provided. First of all, basic needs fulfill की जाएगी. Then we will think about progressing in any other factors, in any other thing. लार्जर फैमिलीज, स्मॉलर फार्म्स बहुत छोटे छोटे हैं लोगों के पास. नो, ऑफकोर्स मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड विद अर्बनाइजेशन, वी कैन से दैट. ओके. तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता जा रहा है उतना ही जो क्रॉप ग्रो करने के लिए फील्ड है वो लेस होती जा रही है, फर्टाइल लैंड पार्ट. नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट करने से हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा डरते हैं. उनको, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, तो एक्सपेरिमेंट करने में उनको बहुत रिस्क लगता है. उनको लगता है कि हाइब्रिड सीड्स क्या पता यूज़फुल ना हो, क्या वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगी या नहीं, कहीं उनमें डिफेक्ट तो नहीं होगा, कहीं वो फ्यूचर टाइम के लिए रखी नहीं जा सकती, स्टोर नहीं किया जा सकता, केमिकल फर्टिलाइजर डालने से कि कहीं क्वालिटी विल डिप्रूव, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी. तो एक्सपेरिमेंटेशन से दे आर वेरी स्केर्ड. Less uses of chemical fertilizers. As I told you, farmers are not educated, not aware. तो chemical fertilizers use करने में उन्हें बहुत डर लगता है. Of course, chemical fertilizers, one of the factor is chemical fertilizers से the fertility of the soil also decrease. तो farmers को डर रही है कि fertilizer use करने से हमारे soil की fertility वो कम हो जाएगी, तो crops grow नहीं होंगी. So this kind of concepts, thinking they have. Modern machinery and scientific approach. They believe modern machinery and technology and scientific approach is difficult to accept. You know, उसको समझने के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना पड़ता है. इट्स डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स अनएजुकेटेड फार्मर्स, इफ दे फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, दो वी हैव स्टार्टेड अ लॉट, बट फिर भी बहुत से फार्मर्स हैं जो अभी तक वो बिलीव करते ही नहीं है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, मशीनरी को इम्पोर्ट करने में, मशीनरी को खरीदने में. दे बिलीव कि हमारे पास लेबर पावर है तो क्या ज़रूरत है मशीनरी की. सो एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. और जो लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, दे फील एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है. एग्रीकल्चर को छोड़कर दे आर मूविंग टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. एग्रीकल्चर इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. और जो एजुकेटेड पीपल है दे प्रिफर सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो. सो एंड सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फार्मिंग, किसान
गांव में रहना, खेती करना एक बहुत लोअर स्टैंडर्ड समझा जाता है कि अरे तुम किसान हो, और मतलब सर्विस सेक्टर में विद्यार्थी है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड मेंटालिटी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब किसान है, खेती बाड़ी करता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट हैज़ stopped obstacle the progress of agriculture। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। दो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Types of farming. The socio-economic condition of social and economic condition. Economic, the financial condition of the people of India. Administrative policy and entire Indian economy is associated with agriculture. जितना भी हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, चाहे इंटायर इंडियन इकोनॉमी हो और एनीथिंग एल्स। Farming types are classified according to irrigation methods. ये जो farming types हैं, they are according to irrigation methods, farm outputs and economic return. Okay? Economic return कैसे मिलता है इनका, इनके irrigation methods कैसे हैं, and farm output कैसा होता है. Farm output means what the result comes out to the field. Okay? So we are going to discuss this according to irrigation method, farm outputs and economic returns. So basically here 6 types are mentioned. 6 types are mentioned here basically. So let's begin. First is subsistence farming. Subsistence farming. In this farming सिर्फ उतना ही ग्रो किया जाता है जो after independence many agricultural development projects are implemented. Yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today. Even after implementing so many policies which are going to benefit the farmers, agriculture sector को support करने के लिए जो policies implement की गई थी, they were implemented but still the success was not attained. उतना जितना हमें सोच रहे थे उतना benefit नहीं हुआ and farmers were still weak and poor. Costly seeds, fertilizers and use of pesticides are not affordable in smaller farm holdings. Small farms में जिसमें फर्टिलाइजर्स खरीदना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, मशीनरी इंपोर्ट करना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, सो इट्स डिफिकल्ट कि वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें. यू नो दैट गवर्नमेंट थ्रू देयर पॉलिसीज दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, समटाइम्स पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, जिससे कि फार्मर्स उसका यूटिलाइजेशन कर सकें. डायरेक्ट मार्केट में बेचने का फैसिलिटी
देना, डायरेक्ट मार्केट से फार्मर्स को कनेक्ट करना, मीडिएटर्स को रिमूव करना. सो मैनी पॉलिसीज आर अडॉप्टेड जिससे कि फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट हो. बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम दैट फार्मर्स आर नॉट गेटिंग दैट progress. So the farm production is just sufficient for his family, which is consumed in the maintenance of the family. This is called subsistence farming. So even today, Indian agriculture is considered to be an activity for life maintenance only. इस खेती में सिर्फ उतना ही छोटे फार्म्स में ग्रो किया जा पा रहा है जितने की उनकी ज़रूरत है. इट मीन्स फैमिली को ही फीड करने में ख़त्म हो जाता है. ना वो मार्केट में सेल कर पाते हैं, ना एक्सपोर्ट करने में हेल्पफुल हो पाते हैं. जितना उगाते हैं उतना खाते हैं और बस गुजारा होता है. सो वट एवर इज दे आर अर्निंग थ्रू दिस, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के मेंटेनेंस में ही खर्च कर देते हैं. तो इनसे कुछ खास बेनिफिट होता नहीं, क्योंकि ये मेन मार्केट तक पहुंचते ही नहीं है, और अगर मेन मार्केट तक पहुंचते हैं तो एक्सपोर्ट के लायक नहीं है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो सिर्फ सफिशियंट है फॉर द फैमिली. ठीक है. ड्राई फार्मिंग, वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, the farming is dependent only on rain. Only one crop is taken through the humidity accumulated within the land. This is known as dry farming. Crops like jowar, millet, pulses which require less water are grown here. In Gujarat, wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon is over. Where there is inadequate water, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, या ड्राई एरियाज हैं जहाँ पे मॉनसून का ही वेट करना पड़ता है फॉर द इरिगेशन, वहाँ पर ये फार्मिंग की जाती है. वो फार्मिंग कब होती है? जब सॉइल में ह्यूमिडिटी कंज्यूम हो जाती है. तो जो भी ह्यूमिडिटी कंज्यूम होती है, वी यूटिलाइज दैट ह्यूमिडिटी टू ग्रो द क्रॉप. ओके. दिस इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग. इनमें पानी सिर्फ उतना ही यूज हो पाता है जो ऑलरेडी सॉइल में एक्यूमुलेटेड है. ठीक है. उतना वाटर सप्लाई नहीं है जितना किसी भी क्रॉप को चाहिए होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग. इनको बेसिकली मानसून का वेट करना होता है. व्हेन द मानसून विल कम देन ओनली देयर क्रॉप्स विल बी इरिगेटेड. ये नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? इसमें इस टाइप ऑफ फार्मिंग में ज्वार इज ग्रोन, मिलेट इज ग्रोन, पल्सेस आर ग्रोन. ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें लेस वाटर इज नीडेड, इसलिए जो सॉइल में ह्यूमिडिटी होती है उसी से मैनेज करना पड़ता है. द एरियाज Gujarat, wheat and gram are grown in the humid soil after the monsoon is over. We have already studied in soil that black soil जो गुजरात में पाया जाता है, that holds a lot of humidity को होल्ड करता है. तो इसका मतलब ये जो है ड्राई फार्मिंग वो गुजरात में भी पॉसिबल है. सो जनरली वी आर डूइंग इट इन गुजरात ऑल्सो. Okay. When the monsoon is finished, जब सॉइल में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बचती है तभी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. नाउ कम टू वेट फार्मिंग. ठीक है. हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस, जिसमें सिर्फ फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं. देन वी हैव कवर्ड ड्राई फार्मिंग, वेयर आफ्टर द मानसून बेसिकली द एरियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन मानसून to grow it, but when the soil holds the humidity, they grow crops in that after the monsoon is over. Basically black soil area in Gujarat you can see this type of farming. Wet farming, wet का मतलब भी समझ में आ रहा है, पानी चाहिए होगा बहुत सारा. Wet farming is carried out in the regions of heavy rain and adequate facility for irrigation. Wet farming उन areas में जहाँ पे heavy rainfall होती है as well as all the irrigation facilities are available. Sufficient पानी है वहाँ. If there is no rainfall or if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation, wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. तो इसमें क्या है? When the question is asked about the types of farming, तो आपको इनके बारे में भी लिखना होगा और एग्जाम्पल्स भी लिखने होंगे कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. ओके. वेट फार्मिंग हमें पता चल रहा है मानसून का भी पानी हमारे पास है, रिवर एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स का भी पानी अवेलेबल है, और इसमें लॉट ऑफ वाटर इज नीडेड. सो दे कैन ग्रो द क्रॉप्स विच हैज लॉट ऑफ वाटर. ओके. विच नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. ओके. हैवी रेनफॉल होता है और एडिक्वेट फैसिलिटी होती है. अगर रेनफॉल नहीं भी हुआ then also they have the option to provide irrigation in those crops, and 1 or 2 crops can be taken with the help of irrigation. अगर मानसून डिले भी हो जाता है या नहीं भी होता है
या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होता है, देन ऑल्सो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, सो वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप देयर। ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इरिगेशन फैसिलिटी? पैडी, राइस, शुगर केन, कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। पैडी जो है वो राइस को कहते हैं, ठीक है। शुगर केन, कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स ये सब ग्रो किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इसलिए इसका नाम वेट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शिफ्ट झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग मतलब झूमने का मतलब यहाँ पे डांस करके नहीं करते हैं, झूमने का मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ ग्रो किया, छोड़ दिया, वहाँ जाके ग्रो किया, छोड़ दिया, फिर वहाँ जाके ग्रो किया, इस तरह से टाइम टू टाइम उनकी फर्टिलिटी रिगेन होने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। Here forests are burnt and cleared and farming is carried out there. फॉरेस्ट को बर्न करके उन एरियाज को फार्मिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। द फार्मिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 or 3 years। कोई भी एक जगह पे एक जगह फार्मिंग 2 or 3 years कंटिन्यू करते हैं। When soil fertility is reduced and that area is abandoned and the same method is applied to start farming at other place, this is called jhum cultivation. Cereals, vegetables are grown in this type of agriculture. Cereals or vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture क्योंकि 1 or 2 years, 3 years के लिए ही we can use the area, कोई भी स्पेसिफिक जगह को फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, वहाँ पे ग्रो किया जाता है, 1 to 3 years को यूटिलाइज किया जाता है, देन वहाँ क्लियर करके वहाँ पे किया जाता है एंड दिस एरिया विल रीगेन इट्स फर्टिलिटी। उस जगह को छोड़ दिया जाता है, अबंडेंट किया जाता है जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके एंड इट्स वेरी गुड क्योंकि हम सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं टू रीगेन इट्स क्वालिटी। वेयर एज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यू नो मैनी अदर क्रॉप्स आर देयर जो नाइट्रोजन बहुत सोक करते हैं, पोटेशियम बहुत यूज़ करते हैं, तो सॉइल में से पोटेशियम और नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाता है एंड देन उनकी फर्टिलिटी जो है वो कम होने लगती है। सो टू मेंटेन दैट ह्यूमस दैट फर्टिलिटी दे हैव टू गिव सम टाइम, ठीक है। Again the same process will be repeated. Some other place we will clear out the forest, burn and make it usable for farming. So that's why it is called jhum, shifting farming, shifting from one place to another. The production is less in this type of agriculture. Production बहुत less होता है, ठीक है, क्योंकि specific चीज़ें ही grow की जा सकती हैं इनमें। Then cereals and vegetables are basically grown in this kind of farming. Cereals and vegetables को ही grow किया जाता है। Let's move on to plantation farming. Plantation farming means this is a special type of agriculture. Here rubber, tea, coffee, cocoa, coconut, apple, mango, oranges, grapes, amla, lemon, kharika, etc. are reared with great care. It is necessary that there should be more capital investment, skill, technique, knowledge, machinery, fertilizers, protection on all sides, acquisition and transportation facility. This kind of farming is very difficult. क्यों? इनमें प्लांट्स को पहले लगाना पड़ता है, फिर काफ़ी टाइम के लिए उनको ग्रो होने का टाइम दिया जाता है। जब वो ग्रो हो जाते हैं तब उनको फ्रूटफुल होने का टाइम आता है। जब फ्रूटफुल होने का टाइम आता है देन लॉट ऑफ केयर इज़ नीडेड। पहले उसको करने के लिए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ देयर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है टू बाय दीज प्लांट्स, ओके। देन टू टेकिंग केयर ऑफ इट, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन एंड स्किल पीपल चाहिए, लॉट ऑफ लेबर वर्क इज इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, दे विल स्पॉइल वेरी सून, बट स्पेसिफिक क्लाइमेट, स्पेसिफिक प्लेस, सॉइल इज नीडेड फॉर दिस। प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज एंड एनी अदर डिस्टर्बेंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं, दे स्पॉइल देम, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दैट ऑल्सो। ये प्रॉब्लम प्लांटेशन में होती है, लाइक रबर ट्रीज ग्रो किए जाते हैं तो एक दिन में तो नहीं होता, ट्री को ग्रो करने के लिए मोर देन 2, 3, 5 years नीडेड, ठीक है। देन एप्पल ऑर्चिड्स आर देयर, देन ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इस तरह की जो खेती होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम टेकिंग होती है, सो लॉट ऑफ केयर इज नीडेड इन दिस। कोकोनट है, एप्पल है, मैंगो है,
ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, ये सबको बहुत रेयर करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड व्हाट वी हैव इट इज़ नेसेसरी, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, लाइक वुड ग्रो करते हैं लोग फर्नीचर के लिए, टीक वुड, ओक, देन सीसम, देन मैनी अदर ट्रीज आर देयर। तो व्हाट दे डू, सैंडलवुड, तो इन सब चीज़ों के लिए लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड, लॉट ऑफ ईयर्स आर नीडेड। इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ स्किल चाहिए, बिकॉज जो सड़ गए हैं, जो खराब पेड़ हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर से फ्रूट्स को नीचे उतारना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोर्स, हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू मेंटेन देम, हाउ टू रेयर देम, उनको पालने पोसने के लिए, यानी कि ट्रीज का लुक आफ्टर करने के लिए पीपल हैज़ टू बी स्किल्ड एंड नॉलेज। Machinery, machines are needed to take them from one place to another. Fertilizers to provide them good quality, ठीक है, क्योंकि पेड़ों में कीड़े लगना, उनमें डिफेक्ट आना, किस तरह की पूरी तरह से फुल्ली फ्रूटफुल ना हो पाना, so many diseases are also there. Protection on all sides, from the insects, from the birds, from any other animal and any other disturbance. Acquisition and transportation facility, where do you have to keep it and how you are going to transport it from one place to the main market. So it's very capital investing, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, ठीक है, इनकी देखभाल करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना और इनको मेन मार्केट तक पहुंचाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So we have discussed. Now let's move on to intensive farming. Intensive farming is the mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizers, insecticides, other mechanical equipments. Cash crops are grown more in this type of farming. The per hectare production has increased very much here and area sown under these crops has increased. As more importance is given to economic returns in this type of farming, it is also known as commercial farming. It is also known as commercial farming. इंटेंसिव फार्मिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि ये एक इम्प्रोवाइज मेथड ऑफ फार्मिंग है। इन दिस फार्मिंग वी यूज द न्यू टेक्नोलॉजी, गुड फर्टिलाइजर्स, गुड स्किल, मशीनरी, insecticides to provide them, to protect them. Everything is looked after very carefully, क्योंकि ये most returns देते हैं, maximum returns मिलता है इनमें, maximum output you will get, because maximum output means more money, more profit, more money, more profit. इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है और technology and scientific methods are adopted here. Then basically इस farming में cash crops grow किए जाते हैं. Now what is cash crop? Cash crops are which gives more benefit, financial benefit होते हैं, ज़्यादा output होता है और ज़्यादा expensive products होते हैं for the market. Okay, cash crops, cash से मतलब ही होता है वो crops जो आपको ज़्यादा return दे सके, ज़्यादा पैसे help कर सके. Are grown more in this type of farming as per hectare production has increased, क्योंकि fertilizers, mechanical equipments, good chemical fertilizers, increase irrigation facilities, सब कुछ इसमें दिया जा रहा है, तो of course ज़्यादा आउटपुट होगा, ज़्यादा आउटपुट यानी more production. As more importance is given to economic return in this type of farming, it is known as commercial farming, क्योंकि इसमें economic return ज़्यादा आते हैं, that's why it is also known as commercial farming. So we have discussed subsistence farming, जिसमें से फैमिली को बियर कर पाते हैं, स्मॉल फार्म्स में किया जाता है. ड्राई फार्मिंग, जिसमें पानी सफिशिएंट नहीं अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, देन ऑल्सो क्रॉप्स आर ग्रोन. वेट फार्मिंग, जिसमें हर तरह के इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, रेनफॉल इज अवेलेबल, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल और ये साल में 2 से 3 बार ग्रो किए जा सकते हैं. शिफ्ट, व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड द क्रॉप्स आर ग्रोन for 2-3 years, the land is used for 2-3 years. उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी
स्लो डाउन हो जाती है, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, दे मूव टू नेक्स्ट अदर प्लेस एंड दे डू इट द सेम थिंग देयर ऑल्सो। प्लांटेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। वाई इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इनको बहुत सालों तक लुक आफ्टर करना पड़ता है, स्किल पीपल आर नीडेड, मशीनरीज आर नीडेड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर नीडेड, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें होता है। देन इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें हर चीज़ अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर, केमिकल यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, देन गुड लुक आफ्टर स्किल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स आर यूज, जिससे कि ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा रिटर्न निकल सके प्रोडक्शन में। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब मोर प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग एंड विच गिव्स मोर, बेसिकली कैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस, कैश क्रॉप्स जो बेनिफिट देते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट कि कैश क्रॉप्स होते क्या हैं, बेसिकली कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कैश क्रॉप्स में इंक्लूडेड है। फार्मिंग मेथड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग आर सम ऑफ द करंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज 6 टाइप्स, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमने एक्सेप्ट की हैं, अडॉप्ट की हुई हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू मस्ट हैव हर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स विल नॉट बी यूज्ड, फर्टिलाइजर्स भी जो नेचुरल होते हैं वही यूज़ किए जाएंगे, लुक आफ्टर होगा क्रॉप्स का इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, आपने सुना होगा। सस्टेनेबल फार्मिंग, एज आई टोल्ड यू, हमने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा है, सस्टेनेबल मीन्स विदाउट डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ऐसी फार्मिंग जिसमें सॉइल की क्वालिटी को डिप्रूव ना किया जाए, सॉइल की क्वालिटी को खराब ना किया जाए, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जहाँ पे कई चीज़ों को एक साथ ग्रो किया जा सकता है। Now let's move on to organic farming. क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? Okay. The rate at which the chemical fertilizers and the insecticides are used. The destructive effect of these chemicals is also felt. You can see around us, जितने भी chemical fertilizers use किए जाते हैं, उतना ही harmful food we are intaking in our body. वो chemical food products, vegetables में भी जाते हैं, जिन्हें हम intake करते हैं daily, and they are very harmful for us. Due to the presence of these chemical and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene of the people. You know that आजकल केमिकल का यूज़ करके जल्दी उन्हें ड्रिप कर दिया जाता है, केले को जल्दी पका देते हैं, एप्पल्स की शेप बदल देते हैं, लौकियों का साइज बदल देते हैं। These all are uses of chemical. तो केमिकल ने बहुत हार्मफुल है फॉर आवर बॉडी। More damage is caused to environment, और उतना ही डैमेज वी आर कॉजिंग टू एनवायरमेंट। यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है, एनवायरमेंट में खराब करता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स दोज हु आर ईटिंग देम उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज़ रिड्यूस्ड, जिससे कि लैंड की फर्टिलिटी एंड ग्रोइंग कैपेसिटी हैज़ रिड्यूस्ड। मोर डैमेज इज कॉज्ड टू एनवायरमेंट, so due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long run. क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमने उसको काफ़ी डैमेज कर लिया है, तो इन लॉन्ग रन वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग देयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच एरिया यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड। यूरिया भी यूज़ किया नहीं जाता और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, dung, earthworm, fertilizer, composite fertilizers are used, and cow urine, neem solvent, buttermilk, etc. are used for the production of crops. जहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप भी मेंटेन हो, they are using
काउ डंग, ठीक है, काउ डंग यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। अर्थवॉर्म फर्टिलिटी, यू मस्ट हैव सीन, एक मेथड होता है जिसमें फर्टिलिटी को रीगेन किया जाता है। वॉर्म्स आते हैं, अर्थवॉर्म्स को छोड़ देते हैं और वो लेयर को पलट देते हैं, so that is a different method. Then composite fertilizers through the decomposition of all bioproducts, leaves, trees, branches, cow dung, human waste, तो ये सब को मिक्स करके एक स्पेशल यूरिया बनाया जाता है जो फर्टिलिटी को रीगेन करने में हेल्प करेगा एज वेल एज विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द क्रॉप और सॉइल। काउ यूरिन यूज़ किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव, जिससे कि इंसेक्ट्स ना आए एनिमल्स क्रॉप्स में। देन नीम सॉल्वेंट, नीम लीव्स, नीम बार्क, उनकी लीव्स को बर्न करके उनकी राख को डालना, दैट इज़ वन ऑफ द मीडियम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। बटर मिल्क को भी डालने से ऑफकोर्स क्रॉप में इंसेक्ट्स एंड पेस्ट नहीं लगते। आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, इसलिए दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, उनमें नेचुरल टेस्ट होता है, स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग इज नेचुरल। There are minerals, vitamins are full, life energizing elements in these crops because they are full of nutrition. They are life energizing element in the crops. Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get a good return. क्योंकि organic farming सबको पसंद है, सबको चाहिए कि हम नेचुरल चीज़ें खाएं, न्यूट्रिशियस हो, फुल ऑफ विटामिन्स, एनर्जाइजिंग एलिमेंट शुड बी देयर, तो हार्मफुल केमिकल्स से अवे हो, इसलिए फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज पीपल आर लाइकिंग इट। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल फार्मिंग? सस्टेनेबल का मतलब ही हमने बात की थी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। तो सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक मेथड है सस्टेनेबल फार्मिंग का, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया है विच इज़ गोइंग टू डैमेज द क्वालिटी। In order to see that the soil fertility is retained for a longer time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizers are only when necessary, use of biotic controls for insects and harvest, water conservation etc. इसमें क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, इसलिए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में नीडेड है then only pesticides and fertilizers will be used. Biotic control of insects are needed, किए जाते हैं। हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग भी नेचुरल मेथड से होती है। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर, बहुत वाइजली यूज़ किया जाता है वाटर को। सो सस्टेनेबल मतलब कि विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू सॉइल, क्रॉप और एनवायरनमेंट और इंसेक्ट्स और पेस्ट अराउंड देयर, ठीक है। Mixed farming. Mixed farming is basically here the cattle rearing, poultry, sericulture, fishery, etc. are also carried out simultaneously along with farming. Farming के साथ खेती तो हम करते ही हैं, साथ में अगर हम एनिमल्स को भी रेयर करते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्म है हमारा, हॉर्स रखा है, डेयरी फार्म है हमारा, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, that is silk production. Silk production, sericulture, and pisciculture is fish rearing. Okay. Sericulture, silk production, fishery, pisciculture. Okay. Then उसके अलावा आपने देखा हो मधुमक्खियों को पाला जाता है, देन एनी अदर एनिमल्स को पाला जाता है, तो दे आर डूइंग द सेम थिंग। फार्मिंग के साथ साथ वो अदर फार्मिंग, अदर काइंड ऑफ इन रेयरिंग कैटल्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मिक्स फार्मिंग, क्योंकि इसमें फार्मिंग के अलावा और भी काम किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मिक्स फार्मिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अब क्या क्या है सीजन वाइज कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। एज पर द सीजन द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। अगर हम सीजन की बात करें तो वी हैव मल्टीपल सीजन हियर, बट कैटेगरी वाइज हमने सिर्फ 3 पार्ट्स में, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ, रबी एंड जायद, 3 सीजन के 3, सर्दी, गर्मी और बरसात, 3 सीजन के लिए, ठीक है। खरीफ
बारिश का मौसम। रबी विंटर, रबी यानी कि रवि नहीं आएंगे, यानी कि सन नहीं होगा, यानी विंटर्स। ओके, ज़ैद समर्स। नाउ व्हाट आर द क्रॉप्स? क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो रेनी सीजन में किए जाते हैं ग्रो वो है खरीफ क्रॉप्स। टाइम फॉर दीज क्रॉप्स इज फ्रॉम जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, you will write it like this, point wise. Kharif crop, okay, point 1 rainy season, रेनी सीजन में ये ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, जून जुलाई से लेकर टू अक्टूबर नवंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिखा रेनी सीजन है, खरीफ का मतलब रेनी सीजन में लगने वाले कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक चलता है। अब कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, एक्सेट्रा। सो इस तरह से पॉइंट वाइज यू विल राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, वॉट एवर क्वेश्चन इज देयर। सो क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, टाइम है इसका जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर। कौन से, पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग, मट आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। रबी which means winter, crops which are taken during winter. So same way we will write Rabi, winter season, time duration October November to March April. What are grown here? Wheat, gram, barley, mustard, linseed, etc. Okay. Then Zaid crop, Zaid यानी कि summers, crops which are grown during summers. Zaid So, crops which are grown during rainy season, rainy season जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, और इसमें पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट आर ग्रोन। देन जैसे ही वो नवंबर में खत्म हुआ तो अक्टूबर नवंबर, उसके लास्ट 2 मंथ्स हमारे रबी के हैं, अक्टूबर एंड नवंबर में। जब ये खत्म किए जाते हैं, इसको हटाया जाता है और ये वाले क्रॉप्स को सोन किया जाता है। देन मार्च टू अप्रैल, और जब ये मार्च टू अप्रैल में जब ये रिमूव किया जाए क्रॉप्स को, ये वाले क्रॉप्स को लगाया जाता है जून एंड जुलाई, मार्च एंड अप्रैल, मार्च टू जून। ओके, सो यू कैन कलेक्ट, वो जून से जुलाई अक्टूबर नवंबर में कट कर निकाल लिया था, हार्वेस्ट कर लिया था। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में इस क्रॉप्स को ग्रो किया था और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद इस मंथ में ही हम नेक्स्ट सीजन के क्रॉप्स लगा देते हैं। ठीक है, crops which are grown during summer are called zaid crops. Time for these crops is from March to June. Paddy, maize, groundnut, til, millet, fruits like watermelon, cucumber, muskmelon, etc. are zaid crops. जो summers में पानी वाले जितने भी हैं वो are grown in this. Major agricultural crops we will continue in the next video. Till then, one table is there here. What you have to do, you have to draw this table in your notebook. Both, all blue part, whatever is given in the box, they are important. Okay. So food grains, paddy, wheat, ज्वार, millet, maize, barley. Food grains जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Pulses में तुअर, मूंग, ग्राम, peas, beans, mud, उड़द, lentil. ठीक है, lentil. Oil seeds के लिए हम क्या क्या ग्रो करते हैं, groundnut, तिल, सोयाबीन, castor, mustard oil, sunflower, coconut oil, linseed oil. Many oils are available according to crops. Beverages यानी कि पीने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ग्रो की जाती हैं पीने के लिए।
लाइक टी, कॉफ़ी, कोकोआ, ये ऐसे क्रॉप्स हैं, ठीक है। कैश क्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, कॉटन, शुगर केन, जूट, टबैको, रबर, ये सब बहुत ज़्यादा कैश कमर्शियल क्रॉप्स नहीं हैं। कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले यानी कि स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स में क्यूमिन सीड, फेनल सीड, इसबगोल सीड, कोरिएंडर सीड, फेनुग्रीक, अजवाइन, ब्लैक पेपर, गार्लिक। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, ग्रेप, जोजोबा, एप्पल, गुआवा, मैनी फ्रूट्स आर, यू नो दैट ऑलरेडी। वेजिटेबल्स में पोटैटो, ब्रिंजल, अनियन, बॉटल गॉर्ड, तुरिया, लेडीज फिंगर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेरियस स्पिनच, तो जितने भी साग में आते हैं, जितने भी हरे वाले लीव्स वाले, ठीक है। दीज आर जस्ट मेजर प्रोडक्ट्स विच आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। फूड ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड 75% ऑफ टोटल एरिया सोन। टोटल एरिया जितना भी सोन किया जाता है उसमें से 75% सिर्फ और सिर्फ ग्रेन होते हैं, ठीक है। ग्रेन उगाई जाती है खाने के लिए नेट सोन एरिया में से, एंड अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन्स। और जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 50% ग्रेन ही होता है। मेजर फूड ग्रेन्स आर एज फॉलोज। Major food grains we will continue in the next video. This much part we have covered. You go through it. It's very important. Learn each and everything because it's very important. This lesson marks not only in math but gives you short notes में भी आता है and long notes में भी आता है, long answers में भी. So it is very useful. Read out each and everything carefully. Revise every day regularly. Thank you.